ابھی بلتستان، گلگت اور بلتستان سے الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں. پتہ یہ چلا ہے کہ 250 سے زیادہ کینڈیڈیٹ 2 درجن نشستوں کے لیے لڑ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف 5% نشستیں حاصل کر لے تو وہ جیت سکتا ہے. ڈیموکریسی کا یہ مذاق کب تک رہے گا اس ملک میں؟ جہاں تک تو پارٹیز کے الیکشن کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس دفعہ پہلے بھی الیکشن کے ذریعے ہی میئر شہباز شریف صاحب کو جو بنایا گیا تھا صدر پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس وقت میں پارٹی میں تھا. سر میں اپنے سوال کو ذرا سا امینڈ کر لوں تھوڑا سا. جی، جب میں پارٹی کے اندر الیکشن کی بات کرتا ہوں تو میں نیچے سے اوپر تک خفیہ رائے شماری سے الیکشن کی بات کرتا ہوں. دوسرے الیکشن جو ہاتھ کھڑا کرنے والے ہوتے ہیں اور صرف پارٹی لیڈر کے لیے ہوتے ہیں وہ الیکشن نہیں ہوتے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو پارٹی جو ہے اس کے الیکشن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروانے والی بات وہ بھی سوچ رہے ہیں پارٹی والے. میری طرف جو اطلاعات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن پارٹی کے کروائے جائیں، اور مستقبل میں امید کرتا ہوں کہ یہ پارٹی کے الیکشن ہوں گے. جو پہلے جو جتنی بھی تنظیمیں تھیں وہ میاں صاحب نے میرا خیال ہے ساری جو ہوتی ہیں اب دوبارہ سے الیکشن کے ذریعے میرے خیال میں آئیں گے. جو میری بات ہوئی ہے کسی سے یہ بتایا تھا انہوں نے. جہاں تک ادھر بلتستان کا تعلق ہے، وہاں پر اس دفعہ کچھ ایج تو تھا ایک پارٹی کو، باقی پارٹیز نے بھی وہاں سے سیٹیں لی ہیں. ایک کسی نے 1 لے لی، کسی نے 2 لے لی. کچھ الزامات چل رہے ہیں. میں تو ابھی یہاں ہوں، میں تو ذرا مجھے تو کسی نے بتایا کہ الزامات چل رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو ویدر I can't say anything about this. ایک پارلیمنٹیرین سے پوچھیں، ان سے پوچھیں ذرا یہ بتا سکتے ہیں. ویری ڈیفیکلٹ ہے بتانا. صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کی کیا کارکردگی رہی آپ کے دور میں اسپیکرشپ میں، اور یہ جو آپ کا جو موجودہ دورہ ہے اس سے آپ کیا لیسن سیکھ کے جا رہے ہیں یا کیا ایکسپیرئنس گین کر کے جائیں گے؟ جی، یہ کافی انفارمیٹو معاملات اس میں آئے ہیں اور اس سے ہم سیکھ کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم اپنے ملک میں بھی جس طرح پاورٹی کے خلاف اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اور دیگر انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کی مضبوطی کے لیے، یہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے، ڈیموکریسی کی مضبوطی کے لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ اچھا، میری کارکردگی پچھلے سال میں کتنے بل پاس ہوئے، کیا ہوا؟ 9 اور 8 17 بل اب تک پاس ہو چکے ہیں جو کہ ایکٹ بن چکے ہیں. جی، مبین چودھری صاحب. صاحب میرا سوال اس کا میرا نہیں ہے، کیونکہ میرا تعلق جہاں ڈیلی اخبار سے اور فیڈ بیک عوام سے آتا ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں الیکشن رکوا دیے گئے نون کے کہنے کی وجہ سے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو بولنے کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. وہی لیڈران جو ہے آپ کے، بلکہ آپ کی پارٹی کے قائد شمالی علاقوں میں، گلگت بلتستان میں، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کریں، میں آپ کے پاس پھنسوں گا نہیں. چلے گولمل جواب تو دے نا. یہ بیٹھے ہیں وہ جواب وہ دیں گے. چلے ڈاکٹر صاحب آپ دے پولیٹیکل بات کا جواب وہ دیں گے. میں ہمیں آپ کی پارٹی کا موقف چاہیے. تو یہ ہے کہ پنجاب میں تو آپ لوگوں نے نہیں ہونے دیے اور شمالی علاقوں میں گلگت بلتستان میں جا کے کمپین کرتے رہے ہیں اور
अच्छी भरपूर कंपेन की है। तो आवाम ये जानना चाहती है कि जो एक रायामा हमवार हुई थी कि नवाज शरीफ साहब इस असम्बली में नहीं आना चाहते, तो वो इस चीज को तकबीयत मिली है, क्या ऐसी बात है? नहीं, मियाँ साहब तो असेंबली में शुरू से आना चाहते हैं, इसीलिए तो केस लड़ते रहे। ये फैसला फेडरल गवर्नमेंट का है कि पंजाब में नहीं कराने और वहाँ उन्होंने करवा दी है। ये फैसला प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो आपके सामने है। अब शायद हम तो यही समझते हैं कि इसीलिए उन्होंने करवाया है, जो ये नतीजा निकला है और ये जो इल्जाम लग रहे हैं धांधली के, तो उन्होंने पहले उसके इंतजाम किए हुए थे कि वो जीत जाएंगे। तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो कसूर नहीं है। ये तो आप फेडरल गवर्नमेंट वालों से पूछें कि उन्होंने पंजाब में क्यों नहीं करवाए और वहाँ क्यों करवा लिए, और वहाँ जो करवाए हैं उसमें उन्होंने इतने ज्यादा पैकेज पहले दे के, और वहाँ जो धांधली की खबरें आ रही हैं उसके बारे में आप मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी से पूछेंगे, ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। जी, यहाँ एयरवेज से अफशा मंगे तशरीफ रखती हैं, खातिन की नुमाइंदगी के लिए अफशा मंगे साहबा। जी, बस मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का जो सिनेरियो बना है अभी तक, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी तवक्कुआत क्या थी, क्या हुआ, क्या जनरल कमेंट्स हैं आपके? मेरी तो तवक्कुआत यही थी कि वहाँ इलेक्शन हो और वहाँ से इलेक्शन फिर इलेक्शन हो और जमहूरिया को मजबूती मिले। फिर हो गए सर? ये मैं नहीं कह सकता, अभी आप पता करें। मैं तो कह रहा हूँ कि जो बनेंगे मैं क्या कह सकता एनकेएम के हूँ। हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, एनकेएम का जो नतीजा सामने आया है, तो उसके बारे में, उस डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? उधर एक सीट मिली है मेरे ख्याल में एमसी एक जमात से, वो दूसरे हैं अपने वाले, और एक मेरे ख्याल काफ की है, दो नॉन लीग वालों की है, 2 आजाद है। तीन का मैंने सुना था, अताउल हक साहब। जी राणा साहब, यूके टाइम को ये बताइएगा, जैसे आपने अभी फरमाया कि बलूचिस्तान का मसला बहुत अहम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जब से पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बनी है, तो किसी और सूबे में अगर कोई मसला बने तो अच्छा ताकत दिया जाता है, पंजाब की हुकूमत जाके मदद करती है। क्या आप समझते हैं कि जो बलूचिस्तान का इतना अहम मसला है, अब तक कितनी करारदादें जो हैं बलूचिस्तान की कौम के लिए पास की गई हैं और उनको उनके साथ ताउन करने के लिए, या बलूचिस्तान की हुकूमत जो है उनमें जो तमाम बहरान इस वक्त आपके सामने जो भी सूरत हाल है, उसके हवाले से जरा मैं जानना चाहता हूँ कि पंजाब असम्बली ने क्या किरदार अदा किया? पंजाब असम्बली का किरदार अदा करने का इसका कोई तरीका कार मेरे ख्याल में नहीं है। उनकी अपनी अल्लाह के फजल करम से असम्बली मौजूद है, प्रोविंशियल असम्बली वहाँ मौजूद है, लेकिन पंजाब के अवाम जो हैं, पंजाब के जो हमारे साथी हैं, तमाम के तमाम उनकी ख्वाहिश यही है कि वहाँ मुकम्मल तौर पर अमन व अमान कायम रहे और जो कबातें हैं उनको दूर किया जाए। इसमें तो कोई दो राय किसी की है ही कोई नहीं। करारदाद पास होगी अभी तक? जी, करारदाद पास करने की जरूरत इसमें नहीं है। ये फेडरल इशू है और फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको ले रही है, टेकअप कर रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने ओपनली कह दिया है कि मैं वहाँ जाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं जरदारी साहब के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट के किसी बंदे के साथ मुझे बैठाना जो हल करना चाहे बलूचिस्तान के मसले को, तो हम सब इकट्ठे होकर इसको हल करें। सारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं। अजहर जुबैर साहब, दुनिया टीवी और नेशन यूके। राणा साहब, एमकेएम पंजाब में काम करना चाह रही है और उसमें पहले भी कोशिश की थी, अब फिर वो काम करना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि एमकेएम को एक माहौल मिलना चाहिए पंजाब में काम करने के लिए? और क्या कोई किसी पर कदगन नहीं लगाया जा सकता सारे मुल्क में। आपकी जो आईन पाकिस्तान है वो आप सबको इसकी इजाजत देता है। कोई चाहे किसी पार्टी से हो, उसको अपनी आज़ादी है, वो अपनी बात करे। वो आज़ादी, स्पीच की आज़ादी हर एक को, चाहे वो मिनॉरिटी से हो, चाहे वो मेजॉरिटी से हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो। उसको पहले उनकी देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में मैं तो मतलब अपने मुखालिफ को नहीं कहूंगा कि इसको ऊंची कुर्सी पर ला के बैठा दो। आप भी यही करेंगे। वो तो
मैन टू मैन बात होती है। लेकिन उनकी तरफ से इल्जाम लगाए जाते नहीं, हैं वो- कि हमें रोका जा रहा है, किस तरह से जैसे उनके एक रुकन को गिरफ्तारी का मसला आया पिछले दिनों। आपको पता है उस रुकन के बारे में कुछ? जी उस रुकन के बारे में आपको पता है कुछ मालूमात है कि वो? नहीं, मुझे मालूमात की मैं इधर बैठा हूँ, बता दें कुछ। मैं भी इधर ही बैठा हूँ, मुझे नहीं पता। आप तो वहाँ से आए ना, हमें मालूमात देगा कि कौन है। कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल में ये कहानी बनी हुई है।